b bracket square will be a minus, वीडियो धीरे धीरे आ रहा है ना, a minus b bracket square plus 4ab. Now we can write also a minus b bracket square will be a plus b bracket square, a plus b bracket square minus 4ab. And you have कल एक प्रॉब्लम में दिया था x plus 1 upon x equals to 3, and it was asked what is the value of x minus 1 upon x. From the value of x plus 1 upon x, it was asked to find the value of x minus 1 upon x. So for that purpose, we use the above. We will not find any quadratic equation. We use directly the above. What is it? To find a minus b bracket square, we write a plus b bracket square minus 4ab. X plus 1 upon x. First, I will find x minus 1 upon x bracket square. It will be x plus 1 upon x bracket square. x के जगह a आएगा, 1 upon x के जगह b आएगा. a minus b bracket square will be a plus b bracket square minus a minus b bracket square will be a plus b bracket square minus 4ab. Either a is x and b is x, 1 upon x, and their product ab will be. सर वीडियो आ रहा है क्या? अच्छा आ रहा है, सर, वीडियो अच्छा आ रहा है, वीडियो आ रहा है सर, विजिबल है सर, 4 a into b मतलब x into, हाँ यस विजिबल है सर, विजिबल है, विजिबल है अभी. सर विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है, चलो चलो कोई बात नहीं, ये भी विजिबल है पूरा स्क्रीन. Now x into 1 upon x is 1, x into 1 upon x is 1, ab is 1, ab is 1, so minus 4 into 1 is 4. So you have to subtract my 4 from x plus 1 upon x bracket square. What is square of x plus 1 upon x? That is 3. 3 square is 9. 9 minus 4 is 5. The value of x minus 1 upon x bracket square will be 5. And you will write x minus 1 upon x will be plus or minus root 5. That will be our answer. Now again, today I am going to solve some different questions. Sometimes, see, this is important property we have used here today. What property we use here? We used x plus 1 upon x bracket square and x minus 1 upon x bracket square are interrelated with each other.
You can use for any problem this type of method. Now if we have a quadratic equation, x plus 1 upon x equals to 13 upon 6. What are the roots of this equation? 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 Now, see here, all of you will try. क्या हो रहा है सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? x plus 1 upon x is 13 by 6. So, to find the quadratic root of this quadratic equation, we consider this one as x square plus 1 upon x, 13 by 6. I am going to give you a trick. I am going to give you a trick to solve it directly. So 6x square plus 6 will be 13x. Solve the quadratic equation. Plus 6 equals to 0. Product must be 36. Addition must be minus 30. That is 9 and 4. 6x square minus 9x plus 6 equals to 0. Now find the factors of this expression. 6x square. Take common. 6x square minus 9x minus 4x plus 6 equals to 0. Take common. 6 and 9, the common is 3. 4 and 6, the common is 2. So it will be 3x into bracket. I am not writing directly. You can write directly the factors also. 3x minus 2 and 2x minus 3 are its factors. 3x into bracket. 2x minus 3. Minus 2 into 2 2s are 4, 2 3s are 2 into 2x minus 3 will be 0. So we have the factor 2x minus 3 in bracket, 3x minus 2 0. So we have x equals to 3 by 2 or x equals to 2 by 3. These are the two answers. But very simple, not necessary to solve such a type of quadratic equations. I am giving you a small trick to solve this quadratic equation. Those who are present, very simple trick is there. What are the factors of 6? Find the factors of denominator. Factors of denominator are 6 into 1, 3 and 2. Rational factors. Now, take the squares of the factors. What is the square of 6? 36. What is the square of 1? 1. Add these two. 36 plus 1. What is it? 37. Is it 13? No, these are not our factors. Now, what is the square of 3? 9. What is the square of 2? 4. Now, when we add these two, 9 plus 4, 13. So, these are our factors. So, we have two factors, 3 and 2. Our answer will be 3 by 2 and 2 by 3. Direct answer. One factor upon another factor and another factor upon one factor. These are our answer directly. X plus 1 upon x equals to 13 by 6. Its a direct answer is 3 by 2 and 2 by 3. Anybody has a doubt? Any suggestion about this type of solution? See here, what was this our method? It was, सर yes, yes. आपण आपलं फॅक्टरायझेशन मेथडने करू शकतो ना. हा, पण त्याला वेळ लागतो ना. अच्छा, काय मला म्हटलं? शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट शिकवलाय. हो हो हा, हो. थँक्यू. जाणून हो, बुजून चालेल. सुरुवातीला गुड गुड गुड, व्हेरी गुड सजेशन. बघा किती सिंपल आहे, व्हेरी सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ इक्वेशन. एक्झाम मध्ये टाइम नसतो आपल्याला,
आताची गोष्ट वेगळी आहे, स्टेट बोर्डचा पॅटर्न वेगळा असतो. शुभम, शुभम and ओ 6 6 शुभम, अपॉन 3 6 अपॉन 3 और 2 कैसे क्या लिया? 6 अपॉन, फिर से देखो, बहुत सी क्वेश्चन ठीक है। समझो हमारे पास एक इक्वेशन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 13/6, है ना। अभी हमने पहले सॉल्व किया था इसको, बट इसको डायरेक्ट कैसे निकालना? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? 6 के फैक्टर्स है 6 into 1, is it right? First pair of factors. What are another pair? What is another pair of factors? 3 into 2. Okay? अब Okay, हमने sir. आपको बोला था कि कैसे लेना है, तो 6 का स्क्वायर लीजिए। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? 36. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1? दोनों का एडिशन करो 37. इट इज नॉट 13, सो ये पेयर हमारे काम की नहीं। बट 3 और 2 का स्क्वायर लीजिए। 3 का स्क्वायर कितना है? 9 9, और ये 9 हो, और 2 का स्क्वायर 4 है, दोनों को ऐड करो 13 होता है। तो ये दो फैक्टर हमारे काम के, दिस टू फैक्ट विल गिव आंसर। तो आंसर क्या होगा? ये रेसिप्रोकल का एडिशन जब आता है तब आंसर होता है 3 अपॉन 2, पहला आंसर। दूसरा उसका रेसिप्रोकल 2 2 अपॉन by 3. 2/3। आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए इस तरह से सोच सकते हो। You can simplify any quadratic equation in such a type of quadratic equation. इसमें प्लस साइन है, तो माइनस साइन में क्या होगा? आप लोग सोच के मुझे बताइए, माइनस साइन में क्या होगा? प्रोसेस यही रहेगी, माइनस के लिए प्रोसेस यही रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा, लेकिन फैक्टर्स लेना है, प्रोसेस यही रहेगी। ओके, मैं आपको और एक ट्रिक देता हूँ। चलो ट्रिक, हाँ बोलिए। नहीं, ठीक है। आपका ये भी सवाल रहेगा, सर इधर माइनस होगा तो क्या करना पड़ेगा? अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स 13/6 है या और कुछ नंबर है तो क्या करना पड़ेगा? ये भी आप लोगों का सवाल हो सकता है। ये प्लस का सवाल समझो, ये हम एक माइनस की एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसका देखो, x 1 upon x was 13/6. What happens अगर x minus 1 upon x कोई दूसरा नंबर है? समझो मैंने लिया 8 upon 3. First let me find its factors or find it by factorization method. तो मैं क्या करूंगा? x square minus 1 whole thing upon x, x क्रॉस होगा 8 upon 3, ये 3 थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, so it will become 3 is multiplied throughout, 3x square minus 3 will be 8x, 8x होगा। अब हम उसको लिखेंगे 3x square minus 8x, अब हम इसको हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 3 3 are 9 minus 9, ओके। 3 3 are minus ये 9 और ये माइनस साइन, तो माइनस 9 के फैक्टर्स है। These 3 and minus 3, these are the two factors, but their addition is not minus. So we take another pair. What is it? Itself. What is that pair? That pair is minus 9 into plus 1. Minus 9 into plus 1 are the factors of 3 into minus 3. Minus 9 and plus 1. So we have this factorization of this quadratic equation. What is it?
3x square minus 8x minus 30. We have its factors 3x square minus 9x plus x minus. Now again 3x is common, x minus 3 plus 1 is common, x minus 30. Now x minus 3 in one bracket, 3x plus 1 in another bracket. It will give x is 3 or it will give x is minus 1 upon 3. So we obtain the answer 3 and minus 1 by 3. What was our question? X minus 1 upon x is 8 upon 3. We solved it. X square minus 1 upon x is 8 upon 3 and this was our equation. We solved it to find the value of x. Shortcut. See the shortcut method. पहले ये प्रॉब्लम देख लो. ये हमारे यूजुअल मेथड है. इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं. शॉर्टकट में देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स इज 8 अपॉन 3. ये ऐसे हम कुछ डिस्कशन चल रहा था स्टूडेंट के साथ, तो उन्होंने बताया कि सर कुछ शॉर्टकट बताओ, तो बता दिया. आ गया ऐसा किसी बुक में या कुछ हमने कुछ ऐसा रिसर्च नहीं किया, बता दिया. एक ट्रायल एंड एरर मेथड से मिल गया. बहुत पुरानी बात है. तो फिर से वही बात जैसे हमने जब किया था ना, कौन सा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 13/6 में क्या किया था? 6 के फैक्टर्स थे कि नहीं? 3 and 2. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 9 और ये 4 ऐड करके हमारा ये 13 मिल गया था. 13. तो इसी तरह ऐसे करना है. इधर प्लस साइन था, ये प्लस साइन था, अब इधर है माइनस साइन. तो हमको प्रोसेस वही करनी है बट माइनस करना है. क्या माइनस करना है? What are the factors of 3? 3 has only 2 factors. What are these? 3 and 1. 3 has only 2 factors, 3 and 1. What is the square of 3? 9. What is the square of 1? 1. Now here minus sign is there. So we take the subtraction of these two. 9 minus 1 is 8. Now, hello. 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 यस सर. यस सर बोला ना. Okay. Okay. See here. First this was our quadratic equation. X minus 1 upon x is 8 upon 3. Cross multiply. X square minus 1 upon x is 8 upon 3. 3 is multiplied 8 minus 3 is 8x. So 3x square minus 8x minus 3 equals to 0. Yes, I am explaining. Ajinkya. 3x square minus 8x minus 3 ये quadratic equation हमने आपने यूजुअल मेथड से सॉल्व करना है. अब ये मेथड हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोगों को ये मेथड आती है. तो ये मेथड से आपका आंसर आया x is 3 और x is 1 upon 3 minus 1 upon 3. अभी हम जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड से. शॉर्टकट मेथड में देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या था. द प्रॉब्लम वाज x minus 1 upon x is 8 upon 3. तो हमने पहले प्रॉब्लम में क्या किया था? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 13/6 प्रॉब्लम में. x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 13/6 प्रॉब्लम में हमने क्या किया था? ये हमारा प्रॉब्लम था. अभी देखो सर स्क्रीन का प्रॉब्लम है. नहीं सर स्क्रीन का प्रॉब्लम है. Is it a problem of screen to anybody? No. Good. Very good. ठीक है. तो देखिए किसी एक को होगा तो बाकी लोगों को नहीं होगा, ये मालूम नहीं. देखो ये x minus 1 upon x 8 upon 3. अब देखिए ध्यान दो. ओके आर्यन ध्यान दो. ओके अभी आदित्य
x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर लेने हैं. You have to take the factors of the denominator. What are the factors of denominator? 3 and 1. Good. 3 and 1 are the factors of denominator. नहीं, आंसर 6 and 26 नहीं बाबा, यही प्रॉब्लम है, वही आंसर है 3 and minus 1/3. 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1. 9 और 1 का हमको लेना है सब्ट्रैक्शन, तो 9 minus 1 होता है 8. सो हमारे फैक्टर्स आ गए 3 and 1. तो हमारा आंसर होगा 3 upon 1 and 1 upon 3. बट हमारा एक जो आंसर है उसका साइन है निगेटिव, तो आपको प्रश्न पड़ेगा कि आपका सवाल रहेगा का सर किसको निगेटिव देना है. ऐसे केस में एक आंसर निगेटिव होता है, एक आंसर पॉजिटिव होता है, तो कौन से आंसर को निगेटिव देना, ध्यान रखिए उसमें जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर 3/1 and 1/3 में स्मॉलर है 1/3, तो उसको निगेटिव साइन देना है. सो दैट इज आवर आंसर. x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 का अपना ये आंसर. सो चलो हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके आपको आंसर देने हैं. x plus 1 upon x equals to 27 upon 10. x plus 1 upon x is 27 upon 10. सेकंड, ये देखो प्रॉब्लम, इसका आंसर x plus 1 upon x equals to 27/10. ट्रिक से यूज करना है. 10 के फैक्टर्स लो, जिनका स्क्वायर करो, ऐड करो, 27 आना चाहिए, वही आपके आंसर रहेंगे. x minus 1 upon x equals to 23 upon 10. दोनों के लिए सेम नंबर है, थोड़ा बहुत. 5/2 and 2/5. सुमेर सही, पहले का आंसर 5/2 and 2/5. दूसरे का आंसर, दूसरे में भी 5/2 and 5/2 and 2/5 है. देखो फैक्टर से 5/2, इसमें भी फैक्टर से 5/2. ध्यान दीजिए 5/5 are 25 plus 4, 27 नहीं आता ना, तो हमको इधर 29 एडजस्ट करना होगा. अब देखिए हमको इधर 25 में से 4 माइनस करना, इधर 21, तो आपका आंसर आएगा. अब देखो अभी इसका आंसर 5 फैक्टर्स 5/2 और 2/5, थोड़ी गलती हुई थी. ओके 5/2 2/5 सही. नीचे सेकंड प्रॉब्लम में, सेकंड प्रॉब्लम में सेकंड प्रॉब्लम में 5/2 माइनस 2/5 ओम. वेरी गुड. 5/2, क्योंकि एक को निगेटिव साइन देना है. 5/2 और 2/5 में स्मॉल है 2/5. चलो आपको ये ट्रिक आने लगी. थोड़ा सा इधर मिस्टेक हुआ था आपने नंबर लिखते समय, 29 की जगह 27 लिख दिया था. चलो ये हमारे प्रॉब्लम्स है. सीयर, हाँ यस 5/2. दूसरे का आंसर है 5/2 एंड माइनस 2/5. पहले का आंसर है 5/2 एंड 2/5. एंड समझ में आया? समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट. अभी आपको कुछ इक्वेशंस लिखने हैं, कुछ इक्वेशंस फॉर्म करने हैं. जब आपको इक्वेशंस फॉर्म करना होता है, हमारा इक्वेशन रहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. फिर से हम शुरुआत के केस में आएंगे. तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस b अपॉन a, और अल्फा बीटा जो होता है स्मॉल c अपॉन. इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब उल्टा आता है, हमें अगर रूट्स दिए अल्फा एंड बीटा, हाँ यस 5/2 एंड माइनस 2/5 अंश. अभी अल्फा बीटा हम थोड़े आगे गए, अभी वो प्रॉब्लम उधर ही हुआ. अभी अब समझ में आया सब लोगों को. अगर आपके पास अल्फा बीटा है रूट्स में, if you have given roots
how to find a quadratic equation with given roots. To find a quadratic equation with given, ये हमारा क्वेश्चन है. समझो हमारे पास रूट्स दिए 2 and 3. How do you find a quadratic equation with the roots 2 and 3? To find a quadratic equation with given roots, the roots may be given directly or directly or indirectly. समझो हमारे पास दिया अल्फा का वैल्यू 5 और बीटा का वैल्यू 2 है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, फाइंड किया जाता है? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. वेल नोन फॉर्मूला, ऑल ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला, वेल नोन फॉर्मूला. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. दैट इज स्क्वायर ऑफ, फिर से देखिए, if alpha and beta are given, how to form a quadratic equation? Square of variable alpha plus beta, मतलब sum of the roots, sum of roots, sum of root हम consider करते हैं s into x, product of roots means p into x equals to 0. इसको और तरह से लिखते हैं, x square minus alpha plus beta x, हाँ यस, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये प्रॉब्लम के लिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. ये हमारा फॉर्मूला है. दिस इज आवर वेल नोन फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं. वी फाउंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, तो ये इसके लिए आंसर होगा एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द सम ऑफ रूट 5 plus 2 7, 5 into 2 10. ये प्रॉब्लम सिंपल है, मुझे थोड़ा आगे जाना है. आई हैव टू गो, मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ. ठीक है, अल्फा बीटा के वैल्यू मिलने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है. समझे आपके पास अल्फा का वैल्यू है 5 और बीटा का वैल्यू 2 है, तो आपका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 10 इक्वल्स टू 0. मैं इसमें थोड़ा सा बदल करता हूँ. अल्फा की वैल्यू अगर -5 है और बीटा की वैल्यू -2 है, तो हमारा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x. अब ये इक्वेशन बोलिए, चेंज हुआ. अभी अल्फा बीटा 5, अल्फा 5 और बीटा 2 तो हुआ. अभी अल्फा -5 और बीटा -2, दोनों के साइन नेगेटिव हो गए. अल्फा भी नेगेटिव हुआ, अल्फा नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल अल्फा, बीटा इज अ नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल बीटा. तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. यस यस यस. तीसरा प्रॉब्लम है, अगर हमारे जो नए रूट्स हो गए, इफ दीज न्यू रूट्स आर, पहले रूट्स हमारे माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये पहले अल्फा थे बीटा थे, अभी उनके नेगेटिव साइन. अब हमने रूट्स बदल लिए. अगर हमारा इक्वेशन है 1 अपॉन अल्फा, ध्यान बराबर है, लिखा है 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा रूट्स है. 1 अपॉन अल्फा मतलब 1 अपॉन 5 और दूसरा रूट है 1 अपॉन 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? What will be the quadratic equation? If we take the reciprocal of